اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان یارو دوستو، میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے، بہت بڑا احسان کیا ہے، کرم کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا ادنا ایمان والا غلام بنایا ہے۔ دین اسلام کے بارے میں تھوڑی بہت جانکاری حاصل کرنے کی توفیق دی ہے، اور ہم اللہ سے یہ مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے کہ اللہ دین اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق ہمیں نصیب فرما، علم کی طلبگار ہمیں بنا دے، اور دین اسلام کی صحیح علم پر ہمیں آخری دم تک، موت تک نیک عمل کرنے والا بنا۔ تیرے رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندگی گزر بسر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، آمین۔ تو میرے یارو، میرے دوستو، ایک روز قیامت آئے گی دوستو۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار مشرک کفار کو بتایا، مکہ کی جو کافر ہوتے تھے، وہ کافر لوگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار سوال کیا ہے، اے محمد قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت ضرور آئے گی، یہ اللہ کا فرمان ہے، پر کب آئے گی یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اس کے بارے میں علم اللہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں تک بتایا ہے، جتنا بتایا ہے اتنا ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے۔ قیامت آئے گی، وہ دن جمعہ کا دن ہوگا، اتنا ہم تک پہنچا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے یارو، جو مکہ کے کافر لوگ ہیں، جو مکہ کے کافر لوگ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا تھا کہ محمد قیامت کب آئے گی، ان کا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ وہ شک کے بنیاد پر بار بار کہتا تھا، وہ یہ شک کرتا تھا کہ یہ سب بیکار کی بات ہے، فضول کی بات ہے، قیامت نہیں آئے گی، یہ دنیا کبھی ختم نہیں ہوگی، اسی طرح چل رہا ہے، اسی طرح چلتا رہے گا، اور یہ دنیا، یہ جہان، یہ سارے نظام ایسے ہی بنا ہوا ہے، اس کا بنانے والا بھی کوئی نہیں اور اس کو مٹانے والا بھی کوئی نہیں۔ یہ مکہ کے کافر لوگ کہتے تھے۔ آج بھی جو کافر لوگ ہیں دنیا میں، ہمارے سماج میں، ہمارے آس پاس یا پھر دنیا بھر میں، وہ لوگ اسی شک کے بنیاد پر یہ بات کہتے ہیں اور اس باتوں پر شک کرتے ہیں۔ اس کا یہ سوچ تھا کہ قیامت آئے گی بھی تو اگر محمد کی بات سچ بھی ہوا تو ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں گے، ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے، ہم بچ جائیں گے۔ اس کا یہ دل کا کیفیت تھا، اسی کیفیت سے وہ زبان سے کہتا تھا، اور آج بھی جو کافر لوگ ہیں اسی کیفیت کے ساتھ، اسی خیال کے ساتھ کہتے ہیں کہ قیامت آنے دو۔ تو کافر لوگ یہ چاہتا ہے کہ قیامت آئے، ہم اس سے نپٹ لیں گے، اس سے ہم لڑ لیں گے، اس سے ہم بچ جائیں گے، یہ کافر لوگوں کا خیال ہے۔ تو میرے یارو دوستو، مومن مسلمان ہونے کے خاطر ہم الحمدللہ اللہ کا گنہگار بندے ہیں، پر اللہ کا جھکنے والا، سجدہ کرنے والا بندہ ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا بندہ ہے، اللہ کی باتوں پر اور اللہ کی رسول کی باتوں پر اور اللہ کی کلام اللہ قرآن مجید کی باتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں الحمدللہ۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کا دردناک منظر، قیامت بڑا بھیانک چیز ہے، یہ ہم آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ تو میرے یارو، میرے دوستو، قیامت ایسے آئے گی جیسے پل میں
सारा के सारा कायनात, सारी के सारी बनी हुई जो चीज़ है, जो हम देख रहे हैं, जो हम नहीं देख पा रहे हैं, दुनिया भर में बहुत से ऐसे बड़े बड़े हस्ती, बड़े बड़े मखलूक, बड़े बड़े चीज़ें, पहाड़, पर्वत, नदी, नाला, समुंदर, आसमान, ज़मीन, ये सारे के सारे चीज़ जो है पल में बिखर जाएगा, पल में गिर जाएगा, पल में सब तहज नहज हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। ये अल्लाह का फरमान है। जिस तरह हम हदीस में पढ़ते हैं, जिस तरह रुई उड़ते हैं, रुई मतलब तुला जिससे तकिया बनते हैं, रुई या फिर लेप बनती है, तकिया बनती है, वो रुई होते हैं ना, जो धुना हुआ रुई होता है, जो धुना हुआ रुई होता है, अगर उसको हम थोड़ी सी अगर हाथ में अपने हाथ में रखें और ऐसे यूँ फू लगाए तो वो कितना घूम घूम के उड़ उड़ के जो है गिरता है। उसी तरह ये कायनात, ये जहान एक दिन रुई की तरह उड़ने लगेगी अल्लाह की हुक्म से। क़यामत के रोज़ क़यामत ऐसे होगा। तो उसका हम कई निशानी भी दुनिया में देखते हैं कि कई बार हमने देखा है, हम सब ने, आपने भी, हमने भी देखा है कि बड़े बड़े पहाड़ को पल में गिरते हुए देखा, बड़े बड़े महल को, बड़े बड़े बिल्डिंग को, जिसमें कई लोग बसते हैं, रहते हैं, तो वो जो उस बड़े बड़े बिल्डिंग में, बड़े बड़े महल में रहते हैं, उनको भी ये पता नहीं चलता कि यूँ भी हो सकता है। लेकिन ये बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े पहाड़ पल में गिरते हुए हम देखते हैं। आज की सोशल मीडिया की दौर में देखते हैं, मोबाइल में या फिर ज़िंदगी में भी बहुत ऐसे कुछ हमने देखा है। छोटे छोटे बिल्डिंग हमारे गांव में, देहात में पल में गिर जाती है। तो उसी तरह ये कायनात जो है पल में बिखर जाएगा, पल में चूड़ा चूड़ा हो जाएगा अल्लाह की हुक्म से। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह जो चाहता है, जैसे चाहता है, जब चाहता है, अल्लाह अपना फ़ैसला कर देता है। अल्लाह को रोकने वाला, टोकने वाला कोई भी नहीं है मेरे दोस्तों। अल्लाह के बराबर में कोई नहीं है। अल्लाह से ऊंची आवाज़ में बात करने वाला या फिर अल्लाह के फ़ैसला को बदलने वाला, अल्लाह की फ़ैसला को रोकने वाला दुनिया में कोई नहीं है मेरे यारों, मेरे दोस्तों। तो हम मुसलमान जो है, मोमिन मुसलमानों का ये काम बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि हम अल्लाह की हर बात पर 100% यकीन रखें, पूरी तरह से ईमान रखें और उस पर ज़िंदगी गुजारे और ज़्यादा से ज़्यादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में लाए, अपने घर में लाए और अपने बीवी बच्चों को, अपने पोता पोतियों को, अपने नस्ल को दीन इस्लाम की इल्म तालीम दे, इल्म के तालीम दे और हम खुद भी इल्म के तलबगार बने, तालिब इल्म बने, दीन इस्लाम की इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें, तकब्बुर करने वाला ना बने, घमंडी ना बने, अहंकारी ना बने। खुद को जितना भी हमें इल्म मिले या फिर जितना भी हम अल्लाह की इबादत कर पाए, उस पर हम जो है खुद को कमज़ोर महसूस करें। हमारी अपनी इल्म और अमल सारे चीज़ों को जो है थोड़ा समझे, कि नाकिस समझे, क्योंकि मेरे यारों दोस्तों, इल्म जो है अल्लाह का जात है। अल्लाह के ख़जाने में हर चीज़ जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हमारे पास है, जो भी है दुनिया भर में, सारे के सारे चीज़ जो है अल्लाह ने 1% दुनिया में डाला है, 1% दुनिया में डाल दिया है। हम सबको बांट दिया है और 99% इल्म हो या फिर अल्लाह का कुदरत हो, खूबसूरती हो, रूप हो, रंग हो, ये सारी चीज़ 99% जो है अल्लाह अपने जात में रखा है, अपने पास रखा है। और वो सब जो रखा है मोमिन मुसलमान को जन्नत में अता करने के लिए, जो अल्लाह का नेक फरमाबरदार, झुकने वाला, सजदा करने वाला, तौबा करने वाला अल्लाह का मोमिन बंदा बंदी होगा, उनको 99% जो अल्लाह ने सारे ख़जाना रखे हैं, वो इस मोमिन मुसलमान बंदा बंदी के लिए ही रखे हैं, उसको जन्नत में अता फरमाने के लिए, जन्नत में अता करने के लिए। तो मेरे मुसलमान यारों दोस्तों, तकब्बुरकारी ना बनो। अल्लाह हम सबको हिफाजत फरमाए तकब्बुर, अहंकार करने से। चाहे हमारे पास कुछ भी आ जाए, पैसा हो, माल दौलत,
सम्मान शोहरत खूबसूरती रूप रंग जो भी हमारे पास है और जितना भी आ जाए, हम खुद को लाचार बेबस समझे, अल्लाह की मोहताज समझे और अल्लाह की दी हुई नेमत को अल्लाह की राह में खर्च करने की तरीका जो अल्लाह ने बताया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो हम पर लागू है, उस पर हम अमल करें। जी, अल्लाह की दी हुई हर नेमत को अल्लाह की रास्ते में लगाए। तकब्बुर से, घमंडी होने से, अहंकारी होने से अल्लाह हम सबको हिफाजत फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। तो मेरे यार दोस्तों, हम इतना ही कहेंगे। अगर हमारी बात आपको सही लगता है, सही समझ में आता है, तो मेरे यारों अल्लाह की तरफ वापस आ जाओ, नफ्स की ग़ुलामी छोड़ दो, अल्लाह की ग़ुलामी करो। अगर अपनी खैर चाहती हो, अगर अपनी समाज का, अपने रिश्तेदार का, अपने अपनों का, अपने घर का, घर परिवार का अगर खैर चाहती हो, तो अल्लाह की तरफ वापस आ जाओ। गलत रास्ता छोड़ दो, मनमानी का रास्ता छोड़ दो, अल्लाह की ग़ुलामी करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर। अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। तो मेरे यारों, मेरे दोस्तों, हम अल्लाह का अदना ग़ुलाम है। जितना हमें अल्लाह ने इल्म दिया है बहुत थोड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम उसके मुतालिक आपसे कुछ बताया। आप भी नेक अमल करो, हमारे लिए भी आप दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों।